Hello friends, once again this is Sachin Ingre. Would like to welcome you on your YouTube channel. So today we are going to start a new concept called as speed and velocity. But before starting that, I had previously taught you the distance and displacement concept. I had taught you maximum concepts related to that. But still, one concept from my side was remaining. So first of all, I will teach that, and after that we are going to take velocity and speed. Okay. The concept which was remaining from my side was distance and displacement calculation if a particle is moving along a curved path. Suppose this is a circle, okay, and this is the point from which the particle is moving to this point. Okay. So right now you can observe that the particle has crossed a curved path. That means it is taking a curved path. Okay. So how much distance it has covered and how much displacement it has covered from this point to this point is to be calculated. The formula for calculating the distance of a particle along a curved path from this point to this point is given by 2 pi r theta divided by 360. Further, it can be said that pi r theta by 180. Distance is equal to pi r theta by 180 or 2 pi r theta by 360. Okay. Now let us talk about the displacement. As you know that displacement is shortest possible path. So particle has moved from this point to this point. Okay. But actually the shortest possible path for the particle is this one. Okay. You might have got now. So we will have to calculate this shortest possible path. So the formula for calculating the shortest possible path is displacement is equal to 2 pi r sine theta by 2. So in both the cases, theta is the angle made by the radius, this radius with this radius. Okay. In this case, theta will be 90 degree. In this case, theta is given as 120 degree. On putting this value, putting the value of r, you can get the distance as well as displacement. Okay. So this is all the concept related to distance and displacement. Now we are going to study a new concept, speed and velocity. तो देखिए दोस्तों, आपको अगर स्पीड और वेलोसिटी जानना है तो हमें कंपैरेटिव स्टडी पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो एक तरफ मैंने एक कॉलम में लिखा है स्पीड के बारे में और दूसरे कॉलम में लिखा है वेलोसिटी के बारे में। ये दोनों कंसेप्ट मैं आपको साइमल्टेनियसली पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए डेफिनेशन तो आपको दिख रही होगी। इन शॉर्ट, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. Velocity is the ratio of displacement upon time taken. ओके, तो इसका मतलब स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है और वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता तो आपको तुरंत इसके पहले का वीडियो देखना है। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में हमने डिटेल में बात की है। ओके, अगर ये आपको पता नहीं तो आपको वेलोसिटी और स्पीड दोनों को पढ़ने का मतलब नहीं। ओके, तो देखिए जिसको पता है उनको बराबर से समझ में आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी, नेक्स्ट पॉइंट में दोनों का यूनिट निकाला है। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर, दोनों की यूनिट सेम ही रहेगी। टाइम एज यूजुअल सेकंड में आएगा तो यूनिट है मीटर पर सेकंड, दोनों की यूनिट सेम है। ओके, दूसरी बात, पिछले लेक्चर में हमने आपने देखा था डिस्टेंस ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है। तो स्पीड का इस पे डिपेंड है, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड है। तो स्पीड जो है उसकी यूनिट क्वांटिटी क्या रहेगी,
तो स्पीड की क्वांटिटी रहेगी स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी की क्वांटिटी रहेगी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए अब इनके MLT देखते हैं। तो अगर आपको MLT पता है, ये इंजीनियरिंग में इतना इसका ज़रूरत नहीं है, तो MLT आपको पता है कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। दोनों की भी MLT सेम ही रहेगी। अरे सॉरी, मेरे से प्रिंट मिस्टेक हो गई, यहाँ पे भी सेम ही रहेगी। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया। कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो स्पीड के बारे में भी यही कंसेप्ट है। स्पीड कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी निगेटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, हाँ, स्पीड जीरो कब होगी? अरे भाई, आप जब चलेगी नहीं तो स्पीड जीरो हो जाएगी, और अगर आप चल रहे हैं तो आपकी स्पीड रहने वाली है। ओके, अब वेलोसिटी, जैसे हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बराबर है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ओके, या फिर वापस से अपने जगह पे आ रहे हो क्या। इसके ऊपर हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव या निगेटिव रह सकता है। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जीरो रह सकती है, पॉजिटिव रह सकती है, निगेटिव रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं। अगर कुछ पॉइंट बचा होगा तो इसके बारे में। तो आप देख रहे हैं अभी लास्ट का पॉइंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस से, या फिर डिस्प्लेसमेंट ये बराबर रहेगा डिस्टेंस के। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने देखा था कि ज़्यादा रहेगा या फिर बराबर रहेगा डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस कौन से फॉर्मूले में आ रहा? स्पीड के। तो वैसे ही स्पीड ज़्यादा रहेगी या फिर बराबर रहेगी वेलोसिटी के। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये इनके ऊपर अगर हम प्रॉब्लम लेंगे आगे तो आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो कुछ हम प्रॉब्लम लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी को जानने के लिए, ताकि आपके कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ये प्रॉब्लम इजी रहने वाले हैं, पर इंजीनियरिंग में इतने इजी प्रॉब्लम नहीं पूछे जाएंगे। ये हम फाउंडेशन बना रहे हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ओके, तो देखिए, अ कार ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टू द ईस्ट फॉर 120 मीटर in 5 seconds. Then it goes to the west for 60 meter in 1 second. Find the average speed and average velocity. Okay, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इसने लिख के दिया और वापस से क्यों बोल रहा है। तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आपको दिख रही होगी, इसलिए वापस से आपको समझाने के लिए मैंने ये पढ़ा। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है कि भाई अ कार ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमें पहले निकाल लेते हैं ताकि हम हमारी कार उसके ऊपर रख सकें। ओके, तो देखिए, तो आपको पता ही होगा ये हमारा नॉर्थ रहता है, ये साउथ रहता है, ये ईस्ट रहता है और ये वेस्ट रहता है। ऐसा हम नॉर्मली बनाते हैं, बराबर है। अभी देखिए उसने क्या बोला कि अ कार स्टार्ट्स अलोंग अ रोड। तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया तो हम एक काम करते हैं, ओरिजिन को हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं और इसका नाम देते हैं ओ। ओके, अब उसने क्या बोला, अ कार ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू द ईस्ट फॉर 120 मीटर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है वो। कहाँ से? यहाँ से चालू कर रही है वो और ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है, और उसने ट्रैवल किया 120 मीटर। सपोज यहाँ पे वो कार पहुँची और ये जो डिस्टेंस है
यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट का नाम ए दे देते। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ओ और ए, ये डिस्टेंस है 120 मीटर। इसका मतलब उसने 120 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और उसके लिए टाइम कितना लगाया उसने, 5 सेकंड, बराबर है। देन इट गोज टू द वेस्ट, इसका मतलब ये कहाँ पे गई अभी, देन इट गोज टू वेस्ट, यानी कि ए पॉइंट तक पहुंची और उसके बाद में आगे बढ़ने के बजाय वेस्ट की तरफ गई। वेस्ट किधर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट इधर है। तो इसका मतलब ये वापस से इधर जा रही है, बराबर, यही लाइन पे वापस से इधर जा रही है, टूवर्ड्स वेस्ट बोला उसने। और उसने क्या बोला, देन इट गोज टू वेस्ट फॉर 60 मीटर। कितने मीटर, 60 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे ए से लेके वेस्ट की तरफ गई और कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 60 मीटर। यानी कि यहाँ से ए से लेके, ये सपोज बी पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 60 मीटर। ओके, ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। ओके, और उसके लिए उसने कितना सेकंड लिया, ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए उसने 1 सेकंड लिया। अब उसने क्या बोला, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो उसने अपने को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला है। तो सबसे पहले चलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अभी नॉर्थ साउथ तो मेरे लिए काम का ही नहीं है फिलहाल के लिए, छोड़ देता मैं उसे, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट ही उसने बताया था। तो एवरेज स्पीड, तो भाई आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस बार उसने बोला एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड यानी पहले पॉइंट से लास्ट के पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो भी टाइम लेगा, दैट विल बी इट्स एवरेज स्पीड, बराबर है। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक का, बराबर है। और डिस्टेंस यानी जितना उसने ट्रैवल किया वो, तो उसने पहले ट्रैवल किया ओ से लेके ए तक और फिर बाद में ए से लेके बी तक, बराबर है। ओ से लेके ए तक उसने कितना ट्रैवल किया, 120 मीटर, ओ से लेके ए तक, बराबर है। और फिर बाद में ए से लेके बी तक उसने कितना ट्रैवल किया, 60 मीटर। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ओ से लेके बी तक कितना आ गया, 120। ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना आ गया टोटल, 120 प्लस 60। ओके, अब क्या, ये तो हो गया डिस्टेंस के बारे में। अब हमें गिनना है टाइम। तो ओ से लेके ए तक उसने कितना टाइम लिया, 5 सेकंड। फिर बाद में ए से लेके बी तक उसने कितना टाइम लिया, 1 सेकंड। तो टोटल ओ से लेके बी तक कितना सेकंड लग गया उसको, 5 सेकंड ओ से लेके ए तक और 1 सेकंड ए से लेके बी तक, बराबर है। तो हमें उसने स्पीड पूछा ओ से लेके बी तक की, तो वो आ जाएंगी 180 डिवाइड बाय 6, विच कम्स आउट टू बी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गई भाई हमारी स्पीड। स्पीड कैसे निकाल लिया, एक प्रॉब्लम से हमने बताया। ओके, अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन ओरिजिनल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो हमारा ओरिजिनल पॉइंट तो ओ है और हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी है। तो ओ और बी के बीच में का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है वो रहेगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी वो निकालेंगे कैसे, तो एक काम करते हैं, हमें ओ से लेके ए तक कितना डिस्टेंस था भाई, 120 मीटर था, लिख लिया मैंने। पर हमें वो होना क्या, नहीं, हमें ओ से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट होना। तो उसके लिए ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो ओ से लेके ए में से माइनस कर देंगे, बराबर है। और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 60 है, तो -60। यानी कि मैंने अगर टोटल डिस्टेंस ओ ए से ए बी डिस्टेंस माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा, विच विल बी माई डिस्प्लेसमेंट। इसलिए 120 - 60।
अब भाई टाइम, अब टाइम में ऐसा नहीं रहेगा कि भाई ओ से लेके ए तक 5 सेकंड माइनस ए से लेके बी तक 1 सेकंड। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा भाई। ओ से लेके बी तक जाने के लिए जितना टाइम लगा वो टाइम हमें लेना है। ओके, इसमें टाइम में माइनस नहीं होगा। ओके, टाइम जेन्युइनली ओ से लेके बी तक जितना टाइम लगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पे गया फिर बाद में यहाँ पे आया, जितना टाइम लगेगा वो टाइम ही हमें लेना है। तो ओ से लेके बी तक कितना टाइम लगा, ओ से लेके ए तक जाने के लिए और फिर बाद में ए से लेके बी तक जाने के लिए, विच इज़ 5 + 1 6 सेकंड। आई होप आपको समझ में आ रहा। मैं इसलिए डिटेल में ले रहा हूँ क्योंकि बहुत काम में आने वाला है आगे जाके ये कंसेप्ट। तो भाई 120 - 60 कितना हो जाएगा, 60/6 विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड। पिछले इसमें कितना था, 30 मीटर पर सेकंड, पर वो क्या थी, स्पीड थी। और वेलोसिटी कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो स्पीड है, वो किसी ने पूछा कि भाई ये टाइम पे आपके गाड़ी का स्पीड क्या था, जिस 30 मीटर पर सेकंड, पर एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वेलोसिटी रखा, 10 मीटर पर सेकंड। इसका बोलने का मतलब क्या हो गया, बोलने का मतलब क्या हो गया कि भाई आपकी स्पीड ज़्यादा है आपके वेलोसिटी से। और हमने ये कंसेप्ट देखा था कि स्पीड माइट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, जितना हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था वो बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्लियर हो गए हैं। ओके, और एक प्रॉब्लम लेते हैं। अ रनर इज रनिंग अराउंड रेक्टेंगुलर ट्रैक विथ लेंथ 50 मीटर 50 मीटर एंड विड्थ 20 मीटर यानी कि 20 मीटर। ओके, ही ट्रेवल्स अराउंड रेक्टेंगुलर ट्रैक ट्वाइस, finally running back to starting point. Okay, if the total time it takes to run around the track is 100 seconds, determine the average speed and average velocity. तो मैं डायग्राम थ्रू आपको पूरा प्रॉब्लम समझा दूंगा। ओके, देखिए उसने कहा है कि भाई ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ है 50 मीटर। तो ये लेंथ उसने दी है 50 मीटर, और जिसकी विड्थ है 20 मीटर। तो ये विड्थ है 20 मीटर। ओके, ही ट्रेवल्स अराउंड रेक्टेंगुलर ट्रैक ट्वाइस। तो वो ये जो ट्रैक है 2 बार घूमता है। सपोज ये मेरा ओरिजिन है, सपोज ये मेरा ओरिजिन है, वो आदमी यहाँ पे एक बार घूम लिया, फिर वापस से और एक बार घूम लिया। तो ऐसा उसने 2 बार ये ट्रैक चला। ओके, इफ द टोटल टाइम ही टेक्स टू रन अराउंड द ट्रैक इज 100 सेकंड। तो उसने बोला कि भाई 2 बार उसने ये ट्रैक ट्रैवल कर लिया और उसके लिए उसने टोटल टाइम लिया 100 सेकंड। यहाँ पे मैं लगे तो टोटल लिख लेता हूँ। टोटल टाइम 2 बार ट्रैवल करने के लिए उसने 100 सेकंड ले लिया। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसने अपने को एवरेज स्पीड भी निकालने को बोला और एवरेज वेलोसिटी भी निकालने को बोला। तो भाई आपको स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए आपको लगेगा डिस्टेंस, बराबर है, और टाइम तो दिया हुआ है विच इज़ 100 सेकंड। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ पे वो आदमी गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 50। ओके, फिर बाद में यहाँ से यहाँ पे आया +20, फिर बाद में यहाँ से आया +50, फिर बाद में यहाँ से यहाँ पे गया और वो डिस्टेंस है 20, बराबर है। तो उसने यहाँ से एक राउंड मार लिया और वो राउंड का डिस्टेंस आया इतना, बराबर। पर ऐसे उसने कितने राउंड मारे, 2, बराबर है। इसका मतलब ये ट्रैक उसने कितने बार कवर किया, 2 बार कवर किया है। तो इसका मतलब × 2 कर दिया
तो मेरा टोटल डिस्टेंस 2 राउंड में उसने कितना कवर कर लिया वो निकल जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे निकलता मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्रैक। तो ये आ जाएगा 50 + 50 100 + 40 यानी 140 इंटू 2, ये आ जाएगा 280 मीटर, बराबर है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया। देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 280 डिवाइड बाय टाइम 100 सेकंड विच इज़ 2.8 मीटर पर सेकंड। भाई इतनी हमारी स्पीड है, ओके। वो आदमी इतने स्पीड से 2 बार ट्रैक को ट्रैवल कर लिया, ओके। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं अभी वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। मेरा यहाँ से उसने चालू किया और 2 राउंड होने के बाद कहाँ पे आके पहुँचा? यहाँ पे ही आके पहुँचा। ओरिजिन से चालू किया, ओरिजिन पे ही आके पहुँचा। इसका मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कितना था या फिर कितना होगा? 0। ओरिजिन पे ही था, वापस से ओरिजिन पे ही आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, बराबर है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है, तो 0। और टाइम कितना लिया उसने? 0 सेकंड नहीं, टाइम लिया उसने 100 सेकंड ही, ओके। तो 0/100, और आपको पता है 0 एनीथिंग इज 0, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ओके। ये उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो अभी आपको स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट्स अच्छे तरह से समझ में आए होंगे, ओके। अब हम अगले लेक्चर में थोड़े एडवांस प्रॉब्लम लेंगे जो इंजीनियरिंग पे डिपेंड है, ओके। ये जो यूनिट है बहुत लेंथी यूनिट है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ कवर करवाना है, ओके। तो कैपेसिटी रखिए, और ये जो यूनिट है इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स भी बहुत आए हैं, ओके। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।